आवाज Yes, Aunty, you are audible. Yes. आई हुई संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਔਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸੀ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਅਗਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੀ ਡਿਨਰ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਆਂਟੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਲੀਪ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੀਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸਕੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए प्रेम की जगह चाहिए। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ दीवाना ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ और बड़ा रिस्पेक्ट करती है। एक गुरु जी की देन है, तो गुरु जी ने जो किया है वो जो है। गुरु जी ने उसके बाद जो है कि मैं उसी बैठ गए थे, वो मैं देखता रहा उन्होंने, लेकिन उससे जो गुरु जी छुट्टी कर देंगे तो फिर जाना ही पैदा। तो गुरु जी 2-2.5 घंटे बाद छुट्टी कर दी थी, घर आ गए। तो नेक्स्ट डे फिर जो 6-6:30 बजे सानू थोड़ा जहाँ इस टाइम ना अक्सर होती है कि समथिंग इज मिसिंग, सानू गुरु जी की याद आ रही। असं तैयार हो गए, गुरु जी दरबार पहुंच गए, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੈ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ
और वो ਜਿਹੜਾ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ तो ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और हर तो सभी चीज उस तो बाद ये अच्छी लगी कि वो कहते सी जो सत्संग है वो करने वाले का भला है, सुनने वाले का भी डबल वाला है। क्योंकि जो बंदा सत्संग कर रहा है ध्यान नाल सुनो, क्योंकि वो जो सत्संग वो कर रहा लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे दिमाग गल्लां होंदियां उसका जवाब उसे सत्संग आ जाता है। ये सत्संग फिर मैंने होर सब तो अच्छी चीज अच्छी लगी कि लंगर प्रसाद आ गया, उत्थे 4 आदमी असीं के खांदे खांदे गुरु जी ने वो लंगर प्रसाद 4 बंदियां नूं खिला के ये दस्या कि कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर है गुरु दरबार। और असीं खांदे सी और इन्ना मजा आंदा सी लंगर करके और एक्सप्लेन नहीं कर सकदा। और बल्कि वो जिहड़ी लंगर दी थाली हुंदी सी वो असीं इन्नी चट लैंदे सी तो वो तुहानूं मतलब है धोण दी लोड़ नहीं पैंदी सी। सो ये गुरु जी दे कोल साडा रूटीन सी ते असीं अपना चले जांदे सी, रूटीन हो गया डेली। मैं जाके की करदा सी कि फिर तो असीं गए फसे तो मेरी आंटी का कल्याण कर दिता, बिठा दिता। फिर क्योंकि गुरु जी जो छुट्टी करते फिर बैठ नहीं सकते, फिर सानू महीना 1.5 महीना होया सी तो असी गुरु जी ने छुट्टी कर दी थी। असी क्या हुक्म है गुरु जी का, असी जाना है। असी घर चले गए, घर गए थे आंसर मशीन से मेरे ब्रदर का मैसेज थी कि विकी मेरा बेटा वो आज मेरे को रहेगा पंचकूले तो वो कल आया। तो असी सौ गए, सवेरे आया थोड़ा जा परेशान थी, मैं की होया बेटा, कहते मेरा जो रात एक्सीडेंट हो गया, ट्रक जा रहा सी, उन्हें ब्रेक मारी तो मेरी गड्डी सुल्की सी मारुति सुल्की वो ट्रक के थले चली गई, बोनट तक चली गई अंदर। तो उत्थे गुरु जी का स्वरूप क्या सी कि गुरु जी ने जैसा हाथ इस तरह करके तो वो मैनू बचा लिया। तो गुरु जी ने बचा, असी फिर गुरु जी को गए, नेक्स्ट साडा रूटीन बन गया सी कि असी पहुंचना उत्थे गए। हाँ भी आंटी तेरे मुंडे ने बचा दिता है। तो गुरु जी ने सब पता है की होना की करना, उसका प्रेजेंट पास फ्यूचर जानते। फिर उस तो बाद की होया कि मैं की करता सी कि मैं सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। आई यूज्ड टू किस हिज फीट एंड सिट इन ए कॉर्नर। मैं कਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। जलंधर की संगत आई, दिल्ली तो आई और बहुत हजार के वैसे जलंधर की गुरु जी ने मिले तो सिर्फ 70-80 संगत थी, लेकिन इस फंक्शन से 1000 एक हो जाती थी और बड़ा अच्छा विसाखी चला। फिर 14 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਆ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? गुरु नाल बड़ा प्यार है कि गुरु जी सच पूछो, लव एट फर्स्ट साइट है। तो गुरु जी ने बुलाया अपने कोल और फिर एक संगत ने बुलाया, मेरा स्वरूप लैके आ और पेन लैके आया। वो संगत जी सी सेवादार वो काला पेन लैके आया, नहीं ब्राउन गोल्डन पेन लैके आया। वो गोल्डन पेन लैके आया, वो अपना काफी बड़ा स्वरूप सी गुरु जी का, मतलब है फ्रेम नहीं सी, बगैर फ्रेम के उत्ते लिखा दीवान फैमिली फुल ब्लेसिंग ऑलवेज फॉर होल लाइफ। गुरु जी 14/4/97 ਲੈ ਜਾਇਜ਼ का। और सच पूछो जो गुरु जी ने अपना स्वरूप दिता ਅਸੀਂ ऐश ही कर रहे। गुरु जी ने ऐश ही कराई। कदे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। तो वाकई गुरु जी ने ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ऐश ही कराई। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। हुक्म मुझे खेती में जल्दी, लेकिन आई वाज नॉट मेंटली फाइनेंशियली फिजिकली नॉट प्रिपेयर। मेरे को पैसे भी नहीं सी, सोचे भी नहीं सी, को बेटा सी। मैं कह जो ब्याह करेंगे बड़ा अच्छा करेंगे तुम बताना। तो हम गुरु जी का हुक्म हो गया। एनी हाउ जो हुक्म थे असं टाल नहीं सकते। फिर असं की किया कि असं एक लिस्ट बनाई अपनी जी फर्स्ट फैमिली की, वो अबाउट 35 बंदे की लिस्ट बनाई। उसके वास्ते असं किसान भवन बुक किया, उत्थे शेराबंदी करके फिर बात लै जावांगे। उस तो बाद बाकी अच्छी जी है मेरी वाइफ का मेरा फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल और ऑफिशियल सर्कल और रिलेशन बहुत काफी बड़ा लंबा चौड़ा सी। उसने 400 बंद की लिस्ट बनाई। असं वो की किया कि असी उत्थे गए आर्मी क्लब, बड़ी अच्छी क्लब है चंडीगढ़। असी क्या भी उत्थे बुक कराने हैं क्योंकि बहुत अच्छा लान है सब कुछ। उन्होंने कहा कि ये डेट से आने की बुक है। फिर असी आ गया उत्थे
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਿੰਕ ਰੋਜ਼ ਟੇਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਗਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਟੀ ਸੂਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਕੱਪੜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਲੱਬ ਫੋਨ ਕਰ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਾਰ ਛਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਸੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 35 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਕਾਫੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ਨਾਈ ਵਾਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ਨਾਈ ਵਾਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਬੇ ਤੂੰ ਇੱਕ CD ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛੀ ਖੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੇਰਾਬੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਈ ਵਾਦਨ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਬੰਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ, 7 ਵਜੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 5 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇतना ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਡਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਿਨਰ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
और surrender कर दो, then Guruji takes over all the worries, financial, physical, mental worries. It is 100%. क्योंकि ये चीज मेरे नाल हुई है, ते हर एक नाल होती, किसी भी गुरु जी को अगर कहो सरेंडर कर दो, उन्हें सामने करो। तो फिर गुरु जी कहते सी जो होंगे सी। उस तो बाद गुरु जी दिल्ली चले गए। साडा रूटीन थी कि जब तक चंडीगढ़ रहे असीं डेली पहुंच जाते सी, जिस तरह नशा होंदा ना, असीं गुरु जी के कोल पहुंच जाते। फिर गुरु जी दिल्ली चले गए। दिल्ली तो बाद फिर असीं अंपायर स्टेट ते मैं जदों जांदा सी, हर महीने गुरु जी का हुक्म हुंदा सी, ते मैं जदों उत्थे जांदा सी अंपायर स्टेट, सीढ़ियां उतरदा सी ते मेरे वाल देख के कहंदे सी दीवाने आ गए। तो गुरु जी ने वाकई दीवाना बनाया सी। और फिर उस तो बाद साडा 5-5 7 का ग्रुप बन जाता सी, क्योंकि सच में करवा रहे, क्योंकि उस वे मेनका गांधी होंगी सी, अपना खट्टर साहब होंगे सी, काफी वीआईपी मुली मनोहर होंगे सी। तो मैं ग्रुप बन के तुम अपना सत्संग करो। फिर गुरु जी ये कहते थे, गुरु जी बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने पूछे थे अंकल किस तरह है, मैं पहले टैक्सी करके जाता सी हस्बैंड के, तुम मेरे कैंकर लेंदे सी ते वापसी ही करके आंदा सी। गुरु जी का पता नहीं कदों छुट्टी करनी है। फिर मैं वापसी की टैक्सी जरिए बंद कर देता, सीधी लैके जाता। क्योंकि गुरु जी का पता नहीं कितने। फिर गुरु जी कहते थे हाँ भी अंकल टैक्सी करके, मैं कहा हाँ जी। फिर हाँ भी सिंगला अंकल, गुरु अपना दीवान अंकल छड़ के जाना है। एक नोएडा तो आंदे सी, उन्होंने नुआई भी अंकल गुरु जी ना रखा सी, नुआई भी अंकल दीवान अंकल। तो ज्यादा ख्याल रखते थे। वो कहते आना थोड़े काम में छड़ना, और इन्हें ख्याल रखते थे कि मेरी संगत जो आंदी है वो आए और उस तो बाद आराम लग जाए। तो ये गुरु जी का रूटीन थी। उस तो बाद फिर असी मोस्टली मेरी बेटियां 2 बब्बे रहनी थी, मैं मेरी वाइफ और मेरे बेटा उत्थे चंडीगढ़ सी गए। तो असी जो बंबे आते सी, गुरु जी मिल के आते सी दिल्ली। और जो बंबे तो चंडीगढ़ जाना तो मिल के जाना। एक बार की होया, अम्मा का सीजन थी, मैं मेरी आंटी कहती गुरु जी वास्ते अंब ले चलिए इतों अंदर जो। ਅਸੀਂ आम की पेटी पैक कराई। ਅਸੀਂ दिमाग भी की ना, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ पर शेर ਦੇ ਨਾਲ गैराज है, वो गैराज के पीछे एक वो हैगा रास्ता हैगा किचन। ਅਸੀਂ ਉਹ पेटी लेके किचन च गैराज तो चले गए, जाके किचन च रखी, आके गुरु जी ने मत्था टेकिया। गुरु जी कहते हाँ भी आंटी गुरु वास्ते बंबे तो अंब ले आएंगे। तो गुरु जी पता है, ਅਸੀਂ सोचा कुछ ही सब पता, वो देख रहे हैं। गुरु जी जब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। एक बार मेरी बेटी बैठी थी, तो कहनी मैं तो गुरु जी कदे तेरे पैर नहीं छुए, तो मैं बंबे जा रही हूँ, पता नहीं कदों आवांगी, मैं तेरे पैर छू के जानी। वो अखा बंद करके कोने प्रेयर कर दूँ, जब अखा खोली आ कुड़ी मेरे पैर। तो गुरु जी को सब पता है। ये ना सोचे गुरु जी नहीं, गुरु जी को सब पता है, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पता है। जो गुरु जी को पहुंचते हो थोड़ी उससे कुंडली खुल जाती, थोड़ी एक फाइल खुल जाती, सब पता लगता। तो ये साढ़ा रूटीन थी। फिर क्यों होया कि मई फर्स्ट वीक असीं बंबे तो चंडीगढ़ गए थे, उत्थे गुरु जी को मिल के गए। अच्छा गुरु जी चलो चंडीगढ़, मेरी आंटी कहती है तो बड़ा टाइम हो गया चंडीगढ़ की संगत बहुत मिस कर दी, चलो। वो कहते नहीं हाले दिल्ली की संगत का थोड़ा सा कल्याण करना है। चले गए वहाँ। फिर 31 तारीख को मैं पेंशन है बैंक में आया सी, तो उत्थे बैठा सी ब्रांच मैनेजर को उत्ते उत्थे थोड़ी देर बाद कहते जवान साहब तारा जो अर्जेंट फोन है। मैं देखा मेरी वाइफ असी रो रही थी, मैं की है सुख है, कहने लगी गुरु जी चोला छड़ दो। मैं घर आया इमीडिएट, बेटे ने क्या टैक्सी करके देख कि गुरु जी को जाना है। ਅਸੀਂ पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंचे। गुरु जी एसी कपने लेटे थे, 8 बजे ਅਸੀਂ पहुंच के 2 बजे चले थे, तो 8 बजे पहुंच गए। वहां से ਅਸੀਂ बैठे 10 बजे तक। फिर 10 बजे सेवादार ने क्या हम तुम जाओ सवेरे आ जाओगे। 10 बजे आ गए सवेरे, फिर ਅਸੀਂ पहुंच गए। और बड़ी संगत सी आल ओवर हर जगह तो पहुंची थी, हजारां संगत सी। और शब्द चल रही थी गुरु जी का कपन मंदिर से आती। तो वो संगत आ रही थी, सारा कुछ हो रहा थी। तो उस वे संगत रो रही थी, बड़ी दुखी थी कि गुरु जी ना जाओ, गुरु जी। उस वे आफ्टरनून गुरु जी ने उतों लैके बाहर मेरा चबूतरा बनाया सी इट्टां दा, नाल उत्थे गोबर का लेप किया, उत्थे गुरु जी ने लिटाया। उत्थे जदों अग्नि वाए किया तो उस वे पहले तो असीं रो रहे थे बहुत बुरी तरह। फिर जदों इन्नी अग्नि की इन्नी खुशबू आई हवा कि वो असी गुरु संगत ने अपने आप सब अंग्रेज किया कि गुरु जी ये ना जान, क्योंकि जो गुरु जी होंगे सी जोड़ी खुशबू उन्होंने होनी होंगी सी। उस वे उन्होंने जो संस्कार हो रहा उस वे। सो गुरु जी के बारे बहुत कुछ बड़े सत्संग है, अगर कमां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी ने बहुत कुछ किया है, और मैं कह नहीं सकता मैंने किसी चीज की कमी यहाँ नहीं। उन्होंने सब पता थे कि करना है। हर वक्त जरा ना असी उन्होंने मुताबिक चलना चाहिए।
लेकिन ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਰੂਪ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 100% ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਮੀ 4x4 ਡੀਪ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਦੇ ਦੇंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਬਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆਰਟੀਓ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ 7 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ 7। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ IAS, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਤੇ ਹੈ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਔਨ ਇਟ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਖਾਰੀ ਬਾਗ ਦੀ। तो एक दिन गुरु जी पहुंच गया उसे, तो आंटी छत पर ये दुकान बंद कर रही थी तो पैसे गिर गई थी। फिर देखा बाहर बाबा खड़ा है लठ लगे बड़े 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 वाल है छटा है, तो वो अपने नौकर को जल्दी पता नहीं कौन है बाबा मार के लठ लग खड़ा मार के पैसे ले जाएगा, जाए 2 रुपए दे के वो गया 2 रुपए देन, तो बाबा है नहीं, वो बाबा चला गया। फिर नेक्स्ट डे आंटी गई गुरु को, हाँ भाई आंटी तू से 100 दिन लौट गई मैंने 2 रुपए देनी है। सो गुरु जी कहने तुझी थी हाँ तू क्या थी आप मैं आ गया, लेकिन मैंने कहना क्या जी की तू पहचानना थी, जो तू कहनी है तेरा काम है पहचान, मेरा काम है आना, तेरा काम है पहचान, तू नहीं बचा तेरी गलती है। सो गुरु जी ने सब कुछ किया, ऐसी गल नहीं है। बहुत अच्छा सी साढ़ा टाइम बहुत ही होनी बड़ी याद आती है गए नहीं किसे नहीं क्यों है कि 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ मैं जो बंबे रहा काफी 2000 से लेके 2000 ऐसे बंबे कोई जानता नहीं गुरु जी कुछ पता नाम नहीं था। फिर उसके बाद में जब टेलीफोन करता सी बेटी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕਾਂਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2 ਫਲੈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਚਲੀ गई, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ कि गुरु जी कहती घर घर जोत जलेगी, घर घर सत्संग, घर घर जोत जलेगी, घर घर सत्संग काम तो मैं देखा टॉप प्लेट से लेके खाने तक 500-600 घर सत्संग रोज कोई दिन हो जाए जरूर 4-5 सत्संग ना हो। बड़ा गुरु जी हूँ इस वे मैं देर के समय तो बाहर है, गुरु जी अपना छा गए बंबे के, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
संगत बड़ी अच्छी है बंबे की, बहुत प्यार भी करती है उन्होंने। इस करके मैं यही कहूँगा प्यारी संगत सत्संग बहुत है, ਤੁਸੀਂ यही है कि गुरु जी ਨੂੰ मनो कहते ਤੁਸੀਂ मनो मंगो नहीं, क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ एंटर करते हो ना, मैंने पता है कि तुम की चाहिए, मैं सब ਨੂੰ देंगे। ਜਿਹੜੀ संगत अगे बैठी हो वो भी, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ बैठी होगी, ਜਿਹੜੀ बाहर बैठी, सब का कल्याण करेंगे, लेकिन कहीं मेरा हो। तो वो कहती ਤੁਸੀਂ कहते मेरा आज हो जाए, मैंने पता है कि आज मैं देंगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ठीक है, जो ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ मैं ज्यादा देना चाहता। गुरु जी का अपना मोस्टली ਅਸੀਂ क्योंकि कहते हैं कि गुरु को कहते ਤੁਸੀਂ आए हो आज ही काम होगा। और 2005 की गल है कि मेरी बेटी मकान ढूंढ रही थी, सामने एक मकान पसंद है, 2 बेडरूम जेपी रोड से, 45 लाख में, बड़ा पसंद आया, अच्छा लगा। डील करने गए, ऑलमोस्ट पेमेंट कर गए, मैं चोर नहीं पता नहीं कि गुरु जी नेवर वांटेड। गुरु जी ने क्यों होया कि असली बड़ा बेटी कहती है तो पापा इतना अच्छा मकान थी, गुरु जी ने पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन बेटा गुरु जी ने तेरे वास्ते भी अच्छी चीज रखी है, मैंने गुरु जी से बहुत भरोसा। तो तुम यकीन नहीं करोगे, ये जो गल नहीं बनी 2 महीने के अंदर 2 बेडरूम की बजाय 3 बेडरूम 45 लाख का सी साइड, उससे बेटर गुरु जी ने डील करा। वो डील ऑलरेडी हो चुकी है, कैंसिल मेरी। सो गुरु जी को पता है। फिर सी कहते नहीं, गुरु जी कहते तो मैं तो नहीं जाना ना, डबल शुक्राने कर, क्योंकि तारे वास्ते ठीक नहीं। हम तो समझते हो ठीक है, लेकिन मैंने पता है तारे वास्ते। इस करके फिर सानू पीले वाकई यार 45 लाख की 2 बेडरूम की बजाय सानू 3 बेडरूम गुरु जी दी। और फिर गुरु जी कहते सी क्योंकि जरा सत्संग करने वाला है वो भी मतलब ਉਹਦਾ भी भला है जरा सुना ला, क्योंकि सत्संग जब सुनते हो ना तो थोड़ा ਉਹਦੇ एक जवाब मिलता है। तो इस करके मैं प्यारी संगत को यही कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है गुरु की, मनो मंगो नहीं, क्योंकि जो तुझे मंगना है वो डेफिनेट मिलेगा, लेकिन टाइम जरूरी है। और गुरु जी प्यार दे, दूसरे से प्यार चाहिए, और थोड़ा भाव देखे किस भावना में। इस करके मैं कहूँगा कि गुरु जी ने प्यार करो, मनो मंगो नहीं, और सब कुछ मिलेगा। 100% मेरे यकीन है कि गुरु जी करेंगे सब बात। जय गुरु। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना, थैंक यू गुरु जी। अंकल जी बहुत सोहने सत्संग सुनाए, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਨਾਲ सत्संग सुनाए, बहुत अच्छा ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ सत्संग सुन के। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ आगे कंटिन्यू करन। और कुछ मन में है तो शेयर करो, कुछ मन में और आ रहा है, कुछ मन में आ रहा है शेयर करने के लिए आप। ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी गुरु जी की बहुत कृपा हम सब संगतों पर। मैं सच में ये कहना चाहती हूँ कि जो गुरु जी की संगतें हैं वो कहने को तो कलयुग है लेकिन सतयुग में है, ये सिर्फ इनकी कृपा से। जैसे पिताजी ने बताया कि गुरु जी ने हुक्म दे के हमें बुलाया था घर से। मेरी बड़ी बहन पहले गई और फिर उन्होंने गुरु जी ने उन्हें कहा कि अपने माँ प्यों लेके आई, बहुत चंगी आत्मा है। देन आवर पेरेंट्स फॉलोड एंड देन आई फॉलोड। तो गुरु जी कहते हैं जब तुम आते हो मेरे दरबार में तो तुम्हारी फाइल खुल जाती। तो मेरी फैमिली में मुझे लगता है कि मेरी फाइल सबसे पहले खुल गई। सच बताएं तो जब हम गुरु जी के पास गए 96 में तो ऐसा कोई दुख नहीं था, कोई ऐसा, हम सच बताएं तो गुरु को ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन गुरु जी ने हमें ढूंढ लिया। तो जैसे मैंने एंटर किया, मत्था टेका, गुरु जी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई मेरे जीवन के बारे में जो मुझे भी नहीं मालूम थी। और मुझे 7 लाइफ टाइम्स दिखाए मेरे, और उसमें से पिछले जन्म के और कुछ और पहले के जन्म के कुछ संगतों से मिलाया, कुछ लोगों से मिलाया, और मेरा जो भी उनसे कार्मिक लेन देन था वो पूर्ण किया। और मैं, गुरुजी जब 33 सेक्टर में बैठते थे तो हम सोच के जाते थे, क्योंकि गुरुजी काफी समय देते थे तब संगतों को, तो हम सोचते थे कि गुरुजी को ये पूछेंगे, और वहां जाके हम टोटली ब्लैंक हो जाते थे। तो जब मैं रात को घर आती थी, कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि आई वाज टू सेपरेट फ्रॉम माय हस्बैंड। तो मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी थी, तो मैं बहुत रात को नींद नहीं आनी, और जब नींद आनी तो गुरुजी ने दर्शन देने और मुझे ये दिखाना कि जैसे मुझे एंजाइटी होती थी एंड आई वुड ड्रिंक गैलन्स ऑफ वाटर, गुरुजी एग्जैक्टली वैसे फ्लोर पे बैठे होते थे जैसे मैं बैठती थी, और गुरुजी भी उतना ही वैसे ही एंग्शियस हो रहे हैं और इतना पानी पी रहे हैं, एग्जैक्टली वो सीन। तो मुझे समझ नहीं आता था कि जो मुझे होता है वो मुझे गुरुजी में क्यों दिखता है। और मैं सोचती थी कि मैं अगले दिन जाके गुरुजी को पूछूंगी, लेकिन वहां जाके ना जरूरत लगती थी कोई सवाल पूछने की ना, और हम टोटली ब्लैंक हो जाते थे। एंड टाइम वेंट ऑन एंड गुरुजी ने मुझे कुछ हुक्म दिया, और हुक्म में रहने की शक्ति पहले दी। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है।
नहीं तो कई बार हम गुरुजी से हुक्म ले लेते हैं या वो कुछ कह देते हैं और हम कर नहीं पाते, लेकिन उन्होंने मुझे वो पूर्ण कराया. इट टुक मी गुड 11 years आई थिंक टू गो थ्रू दैट ऑर्डील ऑफ कोर्ट केस. बहुत उतार चढ़ाव हुए उन सालों में. मेरी हेल्थ, मेरा बहुत कुछ चला गया लाइफ में. लेकिन जब गुरुजी ने जो मुझे दिया, मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगी जो मैंने खोया. रात को गुरुजी दर्शन देते थे और जो नेक्स्ट डे मेरे कोर्ट में विटनेस बॉक्स में मुझे खड़े होकर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, उसके आंसर्स गुरुजी मुझे पहले ही बता देते थे. एंड बिफोर व्हेन ही गेव मी हुकम, ही आल्सो सेड कि जाओ चंगा जिहा वकील करो और कुड़ी दे हक विच होएगा. पहले ही जजमेंट दे दी थी, तो हम बड़ा कॉन्फिडेंटली वी स्ट्राइडेड अहेड. Now during that time, I must mention this कि परमहंस योगानंदा का नाम हम सबने सुना है. उन्होंने अपने यूएस आश्रम में एक कैक्टाई प्लांट लगाया था, और हम सबको मालूम है कि कैक्टस में कांटे होते हैं. लेकिन जब वो कैक्टस लगा, बड़ा हुआ, तो उसमें कांटे नहीं थे. तो इसका तत्व ये निकलता है, जो उन्होंने भी समझाया, कि जब एक पूर्ण गुरु किसी लाइफ को ब्लेस करता है तो उसमें कांटे नहीं होते. एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. हम इनको पूर्ण गुरु तो नहीं, हमको भगवानों की भगवान मानते हैं. उन्होंने जब हमारे जीवन को स्पर्श किया तो उन्होंने मेरे मन में बिल्कुल कोई द्वेष, मैल, ऐसा कुछ नहीं आने दिया. ये एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन थी. नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी किसी से अनबन हुई तो हम उनसे जन्मों तक बात नहीं करते. सो दिस वाज वेरी वेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. एंड आई बिलीव, टोटली बिलीव, कि जब हमारा अंदर का वातावरण बदलता है तो बाहर भी हमारी दुनिया बदल जाती है. So the inner world has to be, addressed. And Guruji did that with me. बहुत बदलाव लाए. मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है और प्लीज इंश्योर कि मैं आपके दरबार से जब यहाँ से जाऊं तो वो गुस्सा मेरे साथ ना जाए. And Guruji would make sure, he would make sure that I don't get angry. And things like that. एक वक्त ऐसा आया कि मैं बहुत आश्रम में रहती थी और बहुत योगा, क्रिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वेरी वेरी डेडिकेटेड. तो ये रास्ता गुरुजी ने मुझे दिया था. आई यूज्ड टू बी इन बैंगलोर आश्रम, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग सदगुरु. तो एक बार गुरुजी गद्दी पे बैठे थे और एक संगत उनके पास लेट आए. गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे और कभी कभी ऐसे लीला खेलते थे जैसे उनको कुछ मालूम नहीं है और वो हमसे सब कुछ लिखवा लेंगे. तो संगत जब लेट आई तो गुरुजी ने उनसे पूछा, तो कितने से लेट क्यों आया हैगा? एंड आउट ऑफ वेरी सिंपल माइंडेडनेस, ही सेज, मैं ऐसे हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी को मिलने गया था. तो गुरुजी पूछते हैं, गुरुजी जानी जान पूछते हैं कि वो कौन है? ऐसे ऐसे वो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं. एंड ही वेंट ऑन. एंड गुरुजी asked him, says, वो क्या होता है? And he went on to explain, breathing technique होती है, ऐसे प्राणायाम करते हैं, and all of that. And you know what Guruji said? He went into deep silence first. He went into deep, deep pause. As I said, he never really, उन्होंने ऐसे प्रवचन नहीं दिए, कुछ ज्ञान नहीं बांटते थे. Very simple and very humble. And बड़ा विटी तरीके से आपको इतना कुछ आपके जीवन में उतार देते थे. Guruji said, जो तुसी क्रिया योग नाल करते हो, रिद्धि सिद्धि नाल पांदे हो, वो कुछ वेले वास्ते हुंदा हैगा. जो उतरों आंदा है वो हमेशा वास्ते हुंदा है. So whatever you do through your spiritual practices, it has a time limit. It comes for a certain purpose and a certain time. But whatever comes from the source, which is Guruji, वो हमेशा के लिए होता. तो मेरी प्रैक्टिसेस उन्होंने धीरे धीरे कम करा दी. उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम छोड़ दो अपनी योगा क्रिया. उन्होंने ये प्रूव कर दिया, नॉट दैट ही नीडेड टू. उन्होंने सिर्फ अपने होने से ही प्रूव कर दिया कि सत्संग में बुला के, लंगर प्रसाद खिला के, अमृत पिला के, शब्द गुरबानी सुनवा के, संगतों को मिला के, उनके इतनी प्यार से, आदर से जीवन बदल दिया. सो सिंपल. क्योंकि जितना भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पास्ट गुरुज, जितना भी हमें सिखाया गया है वो इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया इंसान के लिए कि भगवान को पाना कितना मुश्किल है, और गुरुजी ने उतना ही सिंपल कर दिया. आप जिस रूप में गुरुजी को देखना चाहते हैं वो उस रूप में आपको दर्शन दे देते हैं. और गुरुजी ने ये भी कहा कि मेरे रूप से भी ऊपर उठो. बहुत ऐसे एक एक लाइन में बहुत ज्ञान बांट जाते थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि एज आई सेड, मेरी योगा प्रैक्टिसेस बहुत कम हो गई. बहुत गुरुजी ने जीवन बदल दिया, मन बदल दिया, दृष्टि बदल दी. और सो एक बार मुझे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई. तो मैंने कहा, गुरुजी मैं मानती तो आपको हूँ, लेकिन मैं रास्ते सदगुरु के चल रही हूँ, तो ये क्या? तो गुरुजी ने मुझे एक बार दर्शन दिए. बहुत सुंदर एक आश्रम में ले गए. वहां पर बहुत सुंदर फूल थे, देवी माँ का बहुत प्रकोप था.
और जैसे ही मैं अंदर गई दरबार में तो गुरु जी की गद्दी लगी हुई है और वहां सदगुरु खुद विराजमान है। तो मैं कंफ्यूज हो गई फॉर सेकेंड और मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। वहां गुरु जी की गद्दी जहां लगी थी, मुझे पता था गुरु जी भी हैं वहां, मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। और मुझे उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट चली गई कि मैं मानती तो आपको हूं लेकिन मैं योगा प्रैक्टिसेस उनकी करती हूँ। तो गुरु जी ऐसे आपको आंसर्स देते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगी इस बीच में कि गुरु जी जो कहते हैं और जो नहीं कहते उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। और वो क्या छुपा है और उसके लिए उसके बीच में आपके लिए क्या है वो आपको गुरुजी ही आपको रियलाइज करा सकते हैं समय के साथ। तो बहुत जरूरी है कि इनके साथ हम समय व्यतीत करें, सत्संग में जाएं या घर में, जैसे भी आपकी लाइफ हाउएवर इट अलाउज यू टू। लेकिन मैंने इतना अनुभव किया है कि जब भी गुरुजी ने सत्संग में बुलाया और जब भी आज्ञा दी तो लाइफ स्टार्टेड अरेंजिंग इटसेल्फ लाइक दैट। सारे काम अपने आप बनने लगे। एंड गुरुजी कह के गए थे, हमने ये सुने हैं ये शब्द कि तुसी मेरे को लाओ मैं तुहाडे काम करांगा। तो हमें समझ नहीं आता था कि ये कैसे होगा, अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे काम कौन करेगा। हमें लगता था हम करते हैं। और एक्चुअली टुडे आई वुड से नो, गुरुजी समहाउ हाउ इट हैपेंस वी डोंट नो। ना जानने की जरूरत है, विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है, विश्वास हो जाता है। सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, सरेंडर भी हो जाता है। अगर कुछ करने वाली बात है तो शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद ये है कि यू डिक्लेयर इट टू हिम सत्संग में जाके या उनके चरणों में बैठ के, हियर आपने बिठाया है अपने चरणों में, ये जीवन आपने चलाना है। और वो जो करते हैं वो शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। गुरु जी के अंदर से एक बहुत, जब भी उनकी मौज आती थी खुशबू आती थी। तो वो खुशबू आप कहेंगे, क्योंकि हम फूलों की खुशबू को पहचानते हैं तो हम कहेंगे कि शायद गुलाब की है या चंदन की है। लेकिन संगति हम बैठी हैं सब इकट्ठी, तो किसी को गुलाब की आ रही है, किसी को चंदन की, किसी को मोगरा की। तो हम ये कभी भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते थे, ये बहुत पर्सनल हमारा अनुभव होता था गुरु जी के साथ। तो अब इस बात को बहुत साल हो गए, तो गुरु जी की एक बहुत पुरानी संगत है, वो उन्होंने बताया कि गुरु जी जब बैठते थे गद्दी पे तो कभी कभी ऐसे टैप करते थे अपने ऊपर। तो वो जब टैप करते थे तो उनके अंदर से खुशबू निकलती थी। तो वो खुशबू किसी को गुलाब की, किसी को चंदन, किसी को कुछ और खुशबू में शीतलता होती थी। लेकिन मैंने ये भी सुना, किसी एक संगत ने कहा कि एक जब गुरुजी की खुशबू आ रही थी तो उनको बहुत उसके साथ गर्म हवा आई। और दोनों ही सच हैं, उन संगत का वो सच है, मेरा ये सच है। तो दैट इज वाई गुरुजी इंसिस्टेड डायरेक्ट कनेक्शन, अपने अपने सच के साथ रहें, बहिना जो उनके लिए। अब मुझे याद है गुरुजी ने किसी संगत को डायरेक्ट हुक्म दिया, अमृत वेला करो। और किसी संगत को कहा जो गुरु नु जे वेले गुरु नु याद किया वही अमृत वेला। तो आप इस बात का क्या मतलब निकालोगे? तो आप जहां पर होंगे वहां पे वो गुरुजी आपको उस रास्ते पे ले चलेंगे। तो इतना जरूर है, मुझसे बहुत उन्होंने कर्म भी कराए। और लेकिन आज इतने सालों में मैं ये कहूंगी कि मुझे जो कृपा से मिला वो कर्म से भी नहीं मिला, सिर्फ कृपा। और कृपा मैं कहूंगी ना तो अर्न की जा सकती है, ना अपने कर्मों से उसको पाया जा सकता है। ये गुरु की मौज है। कब किस पे कैसे बस तैयार रहें वो लेने के लिए, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखें। गुरु जी कभी भी कैसे भी वो ही कैन फिल यू अप विद ब्लिस। वेट एंड ट्रस्ट, जस्ट कीप ऑन वेटिंग विद ट्रस्ट। विश्वास बहुत बड़ी चीज है लेकिन करने वाली चीज नहीं है। आज इतने सालों बाद जो गुरु जी ने जितना भी समझाया, मुझे लगता है इसमें आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप करते हैं और नहीं भी है विश्वास और करना शुरू कर देते हैं तो फिर जीवन वैसे पलट जाता है। These are very paradoxical statements that I'm making, but these are experiential things that I have been living. And एक बार और ऐसा हुआ, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे और गुरुजी के अंदर से ना लाइट निकलती थी। एंड कभी कभी कहते थे गुरुजी ऐसे तो ज्योत तो आया, ज्योत विच समा जावांगे। तो गुरुजी के अंदर से लाइट निकलती थी। तो एक बार एक महापुरुष बैठे थे संगत में, तो उन्होंने बड़ा, एज वी नेवर यूज्ड टू रियली हैव द करेज टू आस्क गुरुजी कि गुरुजी से ये पूछे वो पूछे, साइलेंस में ही बहुत कुछ हो जाता था। तो वो महापुरुष ने he gathered courage at the end of the satsang and then he asked Guruji, he says, आप तो ईश्वर हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा? मैंने देखा कि आपके अंदर से लाइट निकल रही थी और वो लाइट किसी को छू रही है और किसी संगत को नहीं छू रही। तो गुरुजी ने मालूम है क्या कहा? गुरुजी ने कहा
ਅਸੀਂ ਤਾਂ देन वास्ते आए हैं, तुसी लैन वाले बनो। और पूरे जन्म हमें ये सिखाया जाता है, बी अ गिवर, बी अ गिवर। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि देने वाले बनो, देने वाले बनो। गुरुजी ने एक ही लाइन में लैन वाले बनो। गुरुजी कहते थे जो मैं देने आया हूं वो कोई लेने को तैयार नहीं है। वो क्या देने आए हैं और हम क्या ले सकते हैं, दैट इज ओनली बिटवीन गुरुजी एंड यू। That is very personal and very direct. You cannot mince that, and nobody can mince that. So वो गुरुजी अपने टाइम पे किसको क्या सिखाएंगे, क्या देंगे, क्या बताएंगे, वो उनकी मौज पर है। मेरी सिस्टर आज शेयर नहीं कर पा रही ये वाला सत्संग, बट इट वुड बी नाइस इफ यू हियर फ्रॉम हर वन डे। लेकिन मैं आपसे वो इंसिडेंट शेयर करती हूँ। सो जब मेरी सिस्टर गई वहां फर्स्ट डे, तो गुरुजी मत्था टेका एंड उसने कहा, गुरुजी ने कहा अपने माँ पियो नु लेके आए, बहुत चंगी आत्मा है। तो मेरी सिस्टर मन में सोच रही है कि चंगी आत्मा, हाउ डज ही नो, मैं तो पहली बार आई हूँ गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा, मैं कह रही हूँ ना बहुत चंगी आत्मा है, लेके आए। तो गुरुजी ने हुक्म दिया, बहुत जैसे आवाज ऊंची करके हुक्म दिया। तो हमारे पेरेंट्स पहुंच गए। तो गुरुजी कई बार ना आज्ञा दे देते थे जल्दी, तो कुछ संगत को बिठा लेते थे। तो जब संगति सब चली जाती थी, देन ही वुड गेट ऑफ हिज गद्दी, गेट आउट ऑफ हिज रोब एंड गेट इनटू हिज ट्रेनर्स और ट्रैक पैड्स एंड देन जस्ट सिट अराउंड। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं परिवार में, तो पूरे हम संगतें उनको घेर के बैठ जाती थी। तो मेरी सिस्टर और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स थे, मैं बॉम्बे में थी तब। तो गुरुजी कहते चलो तैयार हो जाओ। गुरुजी घड़ी नहीं पहने थे, लेकिन ऐसे देख के रिस्ट को कहते हैं 2:30 बज के, चलो असी लेक पे चलते हैं, चाह प्रसाद ले लो ते बिस्किट्स ले लो ते पिकनिक हो जाएगी ना। 2:30 बजे रात को गुरुजी लेक पे लेके जा रहे हैं। चंडीगढ़ में बहुत सुंदर लेक है, सुखना लेक, आई थिंक सेक्टर 5 में। तो वहां गुरुजी गए और गुरुजी जिस भी टाइम सैर पे जाते थे, गुरुजी बहुत सैर को ब्लेस करके गए। तो कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो हेल्थ की तो सैर करना बहुत जरूरी है, जो मैं अपनी लाइफ में अब रिवाइव कर रही हूँ। तो मोर आता था वहां डांस करने। तो गुरुजी चल रहे हैं और मेरी सिस्टर विमी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड जिनके थ्रू हम गए थे गुरुजी के पास, रोजी, वो चल रहे हैं। गुरुजी ने जैसे फ्रेंड्स को पकड़ा होता है कमर से, और हमने सुना था कि गुरुजी जमीन पे नहीं चलते, और वो हो रहा था। तो मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड रोजी बहुत तेज चलते हैं नेचुरली, लेकिन वो भाग रहे थे और गुरुजी तो उड़ रहे थे और बारिश हो जाती, लेकिन उन पर बारिश नहीं पड़ रही थी। तो मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड ने दे एक्सचेंज ग्लांसेस एंड कहा ये कैसे, ये तो भगवान ही कर सकता है कि पूरी बारिश हो रही है और हम तीनों पे बारिश नहीं हो रही। और जब वो वापस आए पैरापीट पे बैठे, तो गुरुजी सैट लाइक ऑन दैट स्टोन वॉल एंड उन्होंने मेरी मदर को कहा मेरी नाभि सूंघो। तो इतनी खुशबू उसमें से, अलग सी खुशबू, बहुत खुशबू, फाउंटेन ऑफ फ्रेग्रेंस लाइक। एंड देन ही सेड मेरे जूतों में मेरे जूते सूंघो। तो इतनी खुशबू। और फिर मेरी सिस्टर ने देखा कि जूते तो एकदम साफ। तो प्रूव हो गया कि गुरुजी सच में जमीन पे नहीं चलते, वो तो उड़ते हैं। और गुरुजी एक समय पे, जहां तक मुझे याद है, जो गुरुजी क्षमा करें अगर मैं गलत हूं, कि 8 जगह पे विराजमान होते थे, दर्शन देते थे। कौन कर सकता है इस जमाने में? इतना कुछ जहां डाइल्यूट हो चुका है, लाइव गुरु भगवान धरती पे आया, और वी फील सो ब्लेस्ड कि हम ह्यूमन चोले में हैं और वी आर एबल टू बी इन हिज ग्रेस। वी कुड हैव मिस्ड दिस चांस ऑल्सो। अगर उनकी दृष्टि ना पड़ती हम सब पे, तो वी कुड हैव मिस्ड दैट। एंड व्हाट वुड हैव बीन आवर लाइफ लाइक, सोच भी नहीं सकते। ये हम कलयुग में सतयुग है हमारे लिए। ये बहुत ऊंची बात है, इसको इस बात को पकड़ के बैठे। There are very turbulent times we are going through as humanity. लेकिन गुरुजी कह के गए हैं, फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा। So विश्वास, keep your faith and trust in good place. We've sailed through only with that. कुछ भी नहीं। गुरुजी सॉरी, प्लीज पापा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। संगत जी, एक चीज मैंने थोड़ा सा वो एक सत्संग याद आ गया है कि गुरु, मेरा बेटा जब फर्स्ट टाइम गया ना गुरु जी को, लोग तो गुरु जी कहते हैं, उन्होंने मत्था टेका, दफा हो जा, तू की लेना है। और आज उसको महसूस हुआ कि मैं इतने प्यार से गया हूँ, गुरु जी ने डांट दिया। मैंने कहा बेटा, ये डांट में भी गुरु जी का कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है। एनी हाउ, हम गुरु जी के पास डेली जाते थे, तो वो भी आता था, लेकिन बाहर से मत्था टेक के चला जाता था, अंदर नहीं आता था। गुरु जी को पता है जानी जा रहे हैं, तो इसको मैंने डांटा है कि ये मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन आता है बाहर से मत्था टेक के लग गया। ये लीला 6 महीने चलती रही।
तो गुरु जी कहते मैं इम्तिहान लेता हूँ, तुम मेरा इम्तिहान लेते मैं आपका लेता हूँ। तो गुरु जी ने इम्तिहान लिया, देखा ये तो लड़का बाहर नहीं आ रहा, बाहर से मत्था टेके। तो एक दिन मेरे बेटे का शाम को हम बम्बे होते थे, तो टेलीफोन रात को आता था। तो उस दिन सुबह सुबह आ गया 7 बजे। मैंने कहा बेटा खैरियत है? आज अर्ली फोन करने के लिए, बाबा मिराकल हो गया, रात को गुरु जी आए थे, कहना हूँ तू आया कर सत्संग से। तो गुरु जी ने डांटा, इम्तिहान लिया, फिर प्यार किया और प्यार से लेके आए, तो आया कर। तो गुरु जी इसको बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने उसको 3 बार लाइफ दी। एक तो उसका मेजर एक्सीडेंट 97। 97 में हुआ शुरू में। फिर 2014 में हम बम्बे में थे, तो मेरी डॉक्टर ला का फोन आया कि राजीव मेरा बेटा, तो उसका लीवर डैमेज हो गया है, तो ट्रांसप्लांट हो गया। तो हमें बड़ा वो हुआ, तो हम भागे, तो हमने जाके वो किया, इधर उधर कंसल्ट किया, लेकिन और तो कोई है नहीं कंसल्टेशन। वो कहते हैं जी इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। तो हम तो गुरु जी के पास बैठ गए, और तो कोई हमारा है नहीं। गुरु जी कहा ये आप देखो कैसे, आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप ही सब कुछ है। तो गुरु जी ने 2014 से लेके 2018 तक लिवर डैमेज तो ट्रांसप्लांट नहीं होनी चाहिए, दवाइयों से ठीक। 2018 में अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो गुरु जी ने कहा था कि ये जो है ना मेरा गुरु परिवार, ये इतना अच्छा परिवार आपको बना के दे रहा हूँ, ये कोई काम नहीं आएगा, यार दोस्त रिश्तेदार, ये परिवार काम है। तो 2018 में जब मेरे बेटे की डेथ हुई, तो आप यकीन नहीं करोगे कि क्रिमेशन ग्राउंड चंडीगढ़ का भरा हुआ था, ओवर क्राउडेड। उसके बाद जब 10 दिन के बाद भोग पड़ा, और गुरुद्वारा भी ओवरलोडेड था, अंदर बाहर सब। तो फिर मेरे को दुख तो था, मेरा एक बेटा चला गया। तो मेरे को फिर ये हुआ, मैंने कहा भी इतनी संगत गुरु परिवार मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया, कंसोलेशन होगी। तो गुरु जी तभी कहते थे ये परिवार आपके काम आएगा, फैक्ट है। फिर क्योंकि गुरु जी से हम बातें करते थे, तो फिर गुरु जी को कहा मैंने कि गुरु जी हम सारी फैमिली को आपने बुला के अपने पास रखा, हम प्यार करते थे आपसे, इतना मानते थे, ये क्या हो गया है? तो गुरु जी ने, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को 3 बार में बेटा दिखाया। एक बार उसका हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एक बार दिखाया कमर में हाथ डाल के जा रहे हैं, एक बार मोढ़े पे हाथ रख। 3 बार मुझे फिर तसल्ली हो गई कि गुरु जी ने जो है अपने पास ले लिया। तो संगत जी, जो गुरु जी जो परिवार बना के दे गए, इस परिवार को मेंटेन रखो, बना के रखो, प्यार रखो। ये परिवार बहुत अच्छा है, गुरु परिवार। इसके बगैर कुछ कुछ अच्छा नहीं है। आपको सब कुछ इसकी प्यार मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा। ये परिवार गुरु जी का कोई भी हो, तो गुरु जी का परिवार को पता लगता है, तो पहले ही आपके पास कोई तकलीफ होती है। जय गुरु। तो जब सुबेन भैया पास्ट हुए, मैं गुरुजी से बहुत नाराज हो गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया था और हो ये गया। तो एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, तब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, तो मुझे दर्शन दिए कि वो लेटे हुए हैं और मैं उनकी चरण सेवा कर रही हूँ, दबा रही हूँ। और मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड बेलू बाहर खड़े हैं, और मैं चरण दबाते हुए सोच रही हूँ कि ये कैसी है बहनें मेरी कि गुरुजी अंदर लेटे हैं, वो बाहर बातें कर रही हैं। और मैं चरण दबाते दबाते समहाउ गुरुजी ट्रांसपोर्टेड में कहीं ले गए, और फिर एकदम मुझे झटके से उठे और जमीन पे आके बैठ गए, और कोई जैसे मोटा पेसल में कोई आयुर्वेदिक दवाई पीस रहे हैं वो कर रहे हैं, और मुझे कहते हैं ये मैं लास्ट वाली दवाई बना रहे हैं तेरे भरा वास्ते। तो मैंने कहा जी गुरुजी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके बाद, आप उनको ठीक कर दोगे। इतना विश्वास उन्होंने मतलब मुझे हो गया था तब। बट लाइफ टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट, प्रोबेबली ही हैड हिज ओन जर्नी, ही मूव्ड ऑन। अब मैं गुरुजी से बहुत नाराज हूँ, और मैंने गुरुजी को कहा, हम चंडीगढ़ में थे उन दिनों, मैंने गुरुजी को बहुत बहुत दुखी मन से कहा, गुरुजी मैं कल बॉम्बे वापस जा रही हूँ, और बॉम्बे में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे सत्संग में मत बुलाना, क्योंकि आप बुलाओगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगी, और अगर मैं आपके सामने आके बैठी तो मैं झूठी बन के नहीं बैठना चाहती, क्योंकि अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है और मेरे मन में अब आप नहीं हो। लेकिन इतना जरूर मैं आपको प्रॉमिस करके जा रही हूँ, लुकिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ द माइंड, क्योंकि मैं इतनी दुखी थी तो ये बातें मन में उठी। मैं अगले जन्म में डेफिनेटली आई विल कम बैक, बट इस जन्म का आपका मेरा लेना देना हो गया। कितना इंसान वो हो जाता है ना, मोह में बौखला जाता है। सो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट स्टेट, एंड दिस द वेरी सेम इवनिंग गुरु जी की बहुत प्यारी संगत सुखी आंटी केम हो। वो कहते हम ऐसे शॉपिंग करने आए थे, तो शी इज फ्लाइंग टू टर्की, एंड बट गुरु जी का एकदम हुक्म आ गया कि दिवांस के घर जाओ। तो वो आए और उन्होंने अपने बहुत समय गुरु जी के साथ बताया है, बहुत सुंदर सत्संग किए, और जाते जाते उन्होंने ये कहा
ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म कर गए वो, जैसे गुरुजी ही आए थे उनके रूप में। उन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कुछ घंटों बाद कि भाई छूटा तो छूटा, गुरु छूटा तो सब छूटा। तो मेरी आंखें जैसे खुल गई, एंड आई सेड व्हाट वाज आई सेइंग कि गुरुजी अब मैं कभी नहीं आऊंगी सत्संग में, मैं अब आपको नहीं मानती, ऑल दैट वाज थ्रोन बैक एट मी। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स वी फ्लू बैक टू बॉम्बे, एंड गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, और नेचुरली इतनी पुल होती है, हम पहुंच ही जाते हैं। एंड देन धीरे धीरे हीलिंग हुई, और उन्होंने बहुत कुछ समझाया और दिखाया। तो वी आर वेटिंग इन ट्रस्ट, जो उनके वचन हैं कि वो कैसे कब अनफोल्ड होगा वो गुरुजी जाने, समय उनका। इट विल बी वेरी लॉन्ग ड्रॉन, बट मैं एक लास्ट में एक फॉर दिस टाइम लास्ट, बट गुरुजी का हुक्म हो तो अगली बार फिर करेंगे। तो गुरुजी ने खुद कह के गए हैं एक बहुत जरूरी बात कि तुम मेरे पास आओ ना आओ, लेकिन माँ प्यो की सेवा करो। तो अभी जैसे बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, और पेरेंट्स आर डिस्टेंट या ओवरसीज रहते हैं बच्चे, तो इतनी सेवा नहीं कर पाते जैसे पहले जमाने में जॉइंट फैमिलीज थी। तो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सचेंज दैट वे, को बड़ों को इतना आदर मिल रहा है, बच्चों को प्यार मिल रहा है, इतनी सीख मिल रही है, इतना गाइडेंस मिल रही है। तो अब थोड़ा वो डिस्टॉर्ट हो गया जैसे। तो मैं बॉम्बे में थी और मेरी मदर बीमार थी उन दिनों। तो भैया एंड भाभी एंड माय नेव्यू एंड आर एक्सटेंडेड फैमिली, जो सेवादार जो भी घर में काम करते थे, बहुत प्यार और बहुत लुक आफ्टर करते थे। तो अब मामा एक दिन बहुत लो फील कर रही थी, एंड आई कॉल्ड हर ऑन द फोन एंड आई सेड हाउ डू आई, मतलब मैं उड़ के कैसे पहुंच जाऊं उनके पास। तो उनको कुछ दर्द हो रहा था, तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि उनको ऐसे से दर्द हो रहा है। तो ऐसे कुछ महीने चलता रहा। तो अब मैं बॉम्बे में हूँ, मामा चंडीगढ़ में है, और आप मानेंगे मैंने जो गुरुजी ने ये स्वरूप में आगे लेके जा रही है, मेरी सिस्टर को दिया था कुछ साइन करके। आई होप इट्स विजिबल, रिमी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा है मेरी सिस्टर का नाम। तो उन्होंने मैंने इस स्वरूप में गुरुजी को ऐसे तेल लगाना शुरू कर दिया चरणों पे। एंड वुड यू बिलीव कि जो हमारे वहाँ केयर टेकर्स हैं, वहाँ इतनी अच्छी एक सेवादार आई जो मैथ्यूज थी, सीमा दीदी, वो इतने प्यार से मम्मी की मसाज करती थी, उनको नर्चर करती थी। मैं आपको ये कहने का कन्वे करना चाहती हूँ कि सेवा आप यहाँ गुरुजी की कर रहे हैं स्वरूप पे। ऑल दो स्वरूप नहीं है, गुरुजी खुद विराजमान होते हैं हर स्वरूप में, इज वेरी मच देयर, और सेवा वहां उनको लग रही थी। तो इवन इफ यू आर डिस्टेंस्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स और फैमिली, तो यू कैन सेंड देम लव एंड लाइट एंड केयर फ्रॉम डिस्टेंस एनर्जेटिकली। तो बड़ी ऐसी सीख गुरुजी ने सिखाई, और बहुत 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 प्यार से मतलब एक गुरु ही ऐसा कर सकता, आपकी हर गलती को माफ करके और इतना आगे ले आए। ये अब इतना नहीं याद आता पीछे, जो छूट गया सो छूट गया। सो जब ऐसा गुरु आता है तो बस ले लो जो भी वो देने आए हैं। इनकी कृपा में रहें, जुड़े रहें, और संगतें जोड़ें। गुरुजी कहते थे संगतें जोड़ो। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, और आज के समय में, हर समय ही वैसे, लेकिन आज के समय में ज्यादा बहुत जरूरत है दुनिया में सबको, टू बी इन हिज लाइट एंड टू बी इन हिज ग्रेस। हमारी प्रार्थना सब संगतों के लिए, सबको बहुत आदर और प्रणाम। गुरुजी का हुक्म हुआ, आज्ञा हुई तो फिर जल्दी सत्संग करेंगे, और होपफुली माय सिस्टर विल आल्सो जॉइन इन सून द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, एक जो आपने बोला ना कि कलयुग में ये हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है, तो दिस इज द बेस्ट वन। मतलब जो हम इस चीज को सोच के चलते हैं कि कलयुग है, इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, और जैसे कहा है कि माड़ा समय है जो आएगा, लेकिन अगर हम उस तरफ ना देखते हुए, उधर फोकस ना करते हुए, इसको हम दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं, तो जो आज आपने कहा इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें हम पॉजिटिव रहेंगे और अपने गुरुजी से जुड़े रहेंगे, रादर देन वो डरे रहना कि ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है। सो मेनी नेगेटिव थॉट्स आर कमिंग अराउंड, और हमारे आसपास भी हैं, हमारे मन में, विचारों में भी आ जाते हैं। लेकिन वो जो आपने बोला, वो सेंटेंस मैं रिपीट अपने मन में जरूर करती रहूंगी। बाकी वो सब, ये भी बहुत अच्छा कहा आपने कि जो होता है वो गुरुजी की कृपा से मिलता है, हमारे कर्मों से नहीं मिलता। अगर उनकी कृपा होती है तो ही हमारे से वो कर्म हो पाता है जो गुरुजी ने करवाना है। और वो भी बहुत सुंदर था कि हुक्म गुरुजी ने दिया, लेकिन उसको करने के लिए कैपेबल बनाया भी गुरुजी ने, क्योंकि सब करता धरता वही है,
हमारा 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 हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम चाह के भी हमारे हाथ में वो चीज नहीं आ पाती जो गुरुजी हमसे चाहते हैं वही होता है। तो बहुत मीनिंगफुल सत्संग, बहुत ब्लेस्ड सत्संग। अंकल जी को गुरुजी बहुत अच्छी, प्यारी और हेल्दी और लॉन्ग लाइफ दे, और आप सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें, और ऑफ कोर्स कर रहे हैं, और आपके मीडियम के थ्रू हमें भी ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, और थैंक यू सो मच आंटी जी। और अंकल को भी थैंक यू करना, हमारा बहुत सारा प्यार संगत की तरफ से। और नेक्स्ट टाइम प्लीज योर अपनी एबिलिटी बता दीजिएगा। सो वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। संगत जी एक एक करके अनम्यूट करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा दो गुरु जी।